भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किसान आंदोलन के समर्थन में जिले में 65 ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला हुआ रवाना। किसान नेताओं ने कहा शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे आंदोलन। जिले में शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण। सबसे पहले सीएमएचओ और पीएमओ ने लगवाया टीका। 10 माह बाद सोमवार से फिर स्कूल होंगे गुलजार। कहीं रंग रोगन कहीं साफ सफाई में होंगे संचालित। पर किसानों का आंदोलन 26वें दिन भी रहा जारी। खबरें विस्तार से। कृषि अध्यादेशों के विरोध में देश में चल रहे किसान आंदोलन और तेज होता जा रहा है। किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली में बैठे किसानों की हौसला अफजाई के लिए जिले से 65 ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला रवाना हो चुका है। वहीं दिल्ली से आए किसान नेताओं ने भी जिले में किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचने की अपील की है। किसान आंदोलन में शामिल किसान नेताओं ने कहा कि सरकार चाहती है इस आंदोलन को हिंसक बनाया जाए, मगर किसान नेता और देश का किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में देश का किसान इस आंदोलन का पुरजोर विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अकेले किसान की नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। इस कानून से सभी वर्ग प्रभावित होंगे। किसान नेताओं ने कहा कि तीनों कानूनों के विरोध में अब पूरा भारत जाग चुका है। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਖੱਟਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿ ਮਸਲਾ ਭਰਾਵੋ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਜਜੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਭਿਆਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 65 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਾੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿੰਸਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਆਮ ਲੋਕ ਉਹ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 26 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ है। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद ज़मींदारों का हौसला अफजाई कर रहे हैं ताकि ये जो 3 बिल जो सरकार ने लाए हैं इनको रिजेक्ट किया जाए, इनको खारिज किया जाए, इनको रद्द किया जाए। इसलिए जितने भी ज़मींदार जा रहे हैं ट्रैक्टर लेके, ओनली ट्रैक्टर ट्राली, ट्रैक्टर में डीजल जो हम उसमें दे देंगे, जितना लगेगा एक टैंकी होती है ना, वो भर के देंगे। यहाँ से कोई भी जाना चाहे उसका स्वागत है। और मैं तो अमेरिका से आया हूँ, आप लोगों की सेवा के लिए आए हैं, हम विद फैमिली आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। जितना भी हो सकता है, हाथों से, पैरों से, मुंह से, मैं लिखता भी हूँ। और वो भी स्टेज पे, वहाँ पे शाहजहाँपुर बॉर्डर पे मैं कई बार बोला हूँ वहाँ पे स्टेज पे,
लोगों से मैंने मुखातिब हुआ हूँ। लेकिन अब वो तो आपने देख ही लिया कि ज़मींदार बहुत हुम आगे जा रहे हैं, बड़े जोश व खरोश से जा रहे हैं। ज़मींदार के कोई धर्म या जाति नहीं होती, कोई पार्टी। ज़मींदार किसान होता है। जो किसान है वो उसकी एक ही जात है कि वो किसान है, धरती पुत्र है, ज़मींदार है। वो अपने ज़मींदार को साथ में लेके जाए, ना कि जात को, धर्म को, सबको पीछे छोड़ के जाए। आप अमेरिका से आए हैं और स्पेशल किसानों की सेवा करने के लिए इसीलिए आए हैं, जेल को ज़मींदारों के लिए। मैं भी ज़मींदार हूँ, खेती करते हैं, ज़मींदार हैं। बख्शीश सिंह जज। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ सिविल लाइन में कलेक्टर की कोठी के पास ही हमारा घर है। हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। हाँ जी, हनुमानगढ़ के। तो ये बात आती है सामने कि विदेशों से फंडिंग आ रही है, विदेशों से फंडिंग आ रही है, आपके सामने आ नहीं रही। ये फंडिंग है और क्या है? किसके लिए? गलत काम के लिए। कोई देश को तो देश के इसी धरती में जन्म लिया, ये देश के वासी हैं पहले से। अब तो अमेरिका के हो गए ना, वहाँ के नागरिक हो गए, वहाँ के सिटीजन हैं हम। लेकिन हैं तो यहाँ के, अमेरिका में रहता है। मन हमारा 24 घंटे यहाँ दिल्ली इंडिया में रहता है। हम देशवासी हैं, देश प्रेमी हैं। मैं वैसे 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਲੇ 1-2 ਵਾਰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਝਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਤੜਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤੜਵਾ ਕੇ ਇਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, बीजेपी खट्टर सरकार है उत्थे जिहड़ी किसान विरोधी है, उन्होंने अगे फिर बैरिकेड लाते 30 किलोमीटर बाद। सारे मौजूद किसान सारे भाई एकत्रित हुए, यहाँ सारे गांवों डानियों से लोग पहुँचे और आज बड़ी संख्या में यहाँ से ट्रैक्टर ट्राली और जो जिम्मेदार के पास साधन है वो सब यहाँ से रवानगी लेके आज से दिल्ली जाएंगे। और अपने पंजाब से लखा सिधाना भी आए थे, उन्होंने भी अपने भाषण दिया और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। 16 जनवरी को जिले की सेहत मुलाजिमों को कोविड वैक्सीन दिए जाने का काम शुरू हो गया। इसके लिए सेहत विभाग ने जिले में 60 टीकाकरण सेंटर बनाए हैं। सबसे पहले जिला अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा व सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा को टीका लगाया गया। डॉक्टर एमपी शर्मा ने कहा कि यह देश और हमारे जिले के लिए खुशी की बात है। जिले में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। वहीं पहले दिन टीकाकरण की व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर व एसपी ने जिला अस्पताल का जायजा भी लिया। करीब 1 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहे देशवासियों के लिए आखिरकार शनिवार को वह घड़ी आ गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार जिले सहित देश भर में शनिवार को दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो गया। हनुमानगढ़ जिले में भी 5 सेंटरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन के बाद दोपहर करीब 12:15 बजे कोरोना का टीका लगाने का कार्य शुरू हो गया। जिले की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मुखिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा व राजकीय जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमपी शर्मा ने जिले में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लाभार्थी बनने का गौरव हासिल किया। सीएमएचओ व पीएमओ ने टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में कोरोना का टीका लगवाया। टीका लगवाने पहुंचने पर सीएमएचओ व पीएमओ का मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी ने माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। जिले में जिला अस्पताल के अलावा जंक्शन के गांव धौलीपाल की सीएससी, पीलीबंगा तहसील की गोलूवाला सीएससी व डबली राठान सीएससी और रावतसर सीएससी में स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगाई गई। पहले दिन कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होने पर सभी ने राहत की सांस ली। सभी 5 सेंटरों पर शाम 5 बजे तक वैक्सीन लगाई गई। जिला अस्पताल में सीएमएचओ पीएमओ के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा, वरिष्ठ डॉक्टर पारस जैन, डॉक्टर ओपी बेनीवाल, डॉक्टर ज्ञान सिंह शेखावत ने टीका लगवाया। टीकाकरण कार्यक्रम के शुभारंभ मौके पर जिला अस्पताल सहित 5 सेंटरों पर उत्सव का सा माहौल रहा। बाकायदा चिकित्सा केंद्रों की गुब्बारों से सजावट की गई।
वैक्सीनेशन को लेकर जिला अस्पताल में महिला नर्सिंग स्टाफ ने भी उत्साह दिखाया। इस कार्य से जुड़ा हर कोई अपनी ड्यूटी को लेकर पूरा मुस्तैद नजर आया। 5 सेंटरों पर कहीं कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जहां वैक्सीन लगाने के बाद किसी स्वास्थ्यकर्मी को घबराहट भी महसूस हुई हो। प्रत्येक सेंटर पर करीब 100 लाभार्थी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। पहले दिन करीब 500 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेट किया गया। अभियान के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को यह टीका नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा कोरोना के लक्षण वाले लोगों को 14 दिन तक वैक्सीनेट किया जाएगा। आज पूरे देश के अंदर और हमारे हनुमानगढ़ जिले में भी कोविड-19 वैक्सीनेशन जो आज लॉन्च हुआ है, उसके तहत जिला अस्पताल के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बाहर गार्ड की व्यवस्था है। गार्ड जो है आने वाले बेनिफिशरी के जो बेनिफिशरी आ रहे हैं, उनका एक हार्ड कॉपी उसमें उनको वेरीफाई करते हुए, उनको बाकायदा सैनिटाइज करते हुए और उनको आवश्यक जो दिशा निर्देश बताते हुए वेटिंग रूम की तरफ भेज रहे हैं। और वेटिंग रूम के अंदर यहाँ पे अलग 6 फीट की दूरी के ऊपर व्यवस्था की गई है बैठने के लिए। उसके बाद एक इम्यूनाइजेशन रूम है जिसमें एक वैक्सीनेटर और एक वेरीफायर जो है वहाँ बैठे हुए हैं। पहले बेनिफिशरी जो है वो वेटिंग रूम से वेरीफायर के पास में जाएगा, अपने डाटा को अपलोड करवाएगा। उसके बाद में वेरीफायर से वो वैक्सीनेटर की तरफ जाएगा। वैक्सीनेटर जो वैक्सीनेशन करने के बाद भी उसमें वेरीफाई होगा ऑनलाइन जो कोविन ऐप हमारा। उसके बाद में फिर वो निगरानी कक्ष में उनको भेज दिया जाएगा, जहाँ 30 मिनट तक वहाँ को वेटिंग करना पड़ेगा कि कोई AFI ना हो वैक्सीनेशन को लेकर के। और ज़िले के अंदर आज जो हमारे जो वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जो 5 जगह सेलेक्ट की गई है, जिसमें जिला अस्पताल है, CHC धोलीपाल है, CHC डबली राठौर है, CHC गोलवाल और CHC रावसर है। और माननीय कलेक्टर, जिला कलेक्टर महोदय हैं, उनके द्वारा भी आज निरीक्षण किया जा रहा है जिला अस्पताल का और CHC रावसर का। कोरोना का टीका लगवाने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि वे PMO के साथ जिले में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले पहले लाभार्थी हैं। साथ ही कहा कि स्वयं कोविड-19 वैक्सीन का पहला टीका लगवाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। उनके साथ साथ चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारियों व कर्मियों ने भी टीकाकरण करवाया। कोविड-19 की वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि किसी भी अफवाह पर गौर न करें, क्योंकि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वहीं PMO डॉक्टर MP शर्मा ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि यह वैक्सीन कोरोना से बचाव करेगी और देश भर से कोरोना खत्म होगा। साथ ही कहा कि उन्हें बड़ी खुशी है कि CMHO के साथ जिले में यह पहला टीका लगवाया गया है। ऐतिहासिक पल है, देश में कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है और मेरा सौभाग्य है कि मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमारे PMO सर और हमारे सम्मानित जो गणमान्य चिकित्सक हैं उन सबके साथ में फर्स्ट जो वैक्सीन हम लोगों ने लगाई है और इसमें मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और जो भी समाज में जो भी डर है वो किसी तरीके का डर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये शुरुआत की है कि सबसे पहले वैक्सीन हम लोग लगाएंगे। कोविड संदिग्ध जिसके भी कोई सिम्टम्स है, लक्षण है, उसको एक बार हम पोस्टपोन करेंगे तो 14 दिन का गैप देके उसको वैक्सीनेट किया जाएगा। इसमें कई सारे क्राइटेरिया है जिनको नहीं लगा सकते, जैसे बच्चों को 18 साल से छोटी उम्र वालों को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो दूध पिला रही हैं, उन महिलाओं को नहीं करेंगे। या जैसे अभी आपने पूछा था कि जिनके सिम्टम्स आए हुए हैं उन लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन का जो आज शुरुआत हुई है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने दिल्ली से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, और मैंने और CMHO साहब नवनीत जी ने डिसाइड किया कि हम दोनों सबसे पहले टीके लगवाएंगे, क्योंकि इस बारे में भी बीमारी नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो कोई किसी तरह की भ्रांतियाँ ना फैलें, किसी को ये ना लगे कि ये क्या है, किन को लगा रहे हैं। तो हमने पहले लीड फ्रॉम फ्रंट हम दोनों ने ये तय किया कि जिले को, ये पूरे जिले को देख रहे हैं, मैं जिला अस्पताल को देख रहा हूँ, ताकि हम हमारे बाकी जो लोग हैं, हमारे फ्रंटल वॉरियर्स हैं, हमारे स्टाफ है, उनमें कम से कम ये विश्वास की भावना हो कि हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो वो लीडर हैं वो लगवा रहे हैं। तो इस भावना के साथ, और हमें वैक्सीन में पूरा विश्वास है कि कोरोना से इससे बचाव होगा और हमारा देश से कोरोना जाएगा निश्चित रूप से। हम हमारे नेताओं में, हमारे रिसर्च स्कॉलर में, वैक्सीन में और सब में बहुत विश्वास करते हुए तय किया कि हम वैक्सीन लगाएंगे। देश के अंदर कोरोना के अगेंस्ट में जो वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार हनुमानगढ़ में भी ये प्रोग्राम हो रहा है और आज लगभग 100 लोगों के यहाँ पर टीके लगेंगे।
हम सब लोगों ने जो CMHO साहब है, PMO है और शहर के जो दूसरे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि आज हम खुद अपना टीका पहले दौर में लगाएं, जिससे लोगों को ये संदेश जाए कि ये टीका लगाना बिल्कुल सेफ़ है और इससे लोगों को किसी प्रकार की कोई हानि या कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हमें बढ़ चढ़ करके इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए और सब लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि इस राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम के अंदर वो अपना सहयोग दें और सब अपना टीका लगाएं और सुरक्षित रहें। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और हम भारतीय वैक्सीन का उपयोग करने जा रहे हैं और मुझे लगता है समाज में फैले सारे भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा। हम हमेशा फ्रंट लाइन वॉरियर रहे हैं और रहेंगे और ये वैक्सीन मुझे लगता है इस देश को आगे ले जाने में मददगार साबित होगी। ये वैक्सीनेशन खुद के करवाने के लिए इकट्ठे करते हैं और ये बहुत ज़्यादा खुशी का विषय है कि इससे आम जनता में फैली सारी भ्रांतियाँ दूर होंगी और हम लोग तो बिल्कुल निश्चिंत हैं कि इससे कुछ नहीं होगा और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उधर कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस ने टाउन जिला अस्पताल व गांव धोलीपाल CSC पहुंच व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने वैक्सीनेशन कार्यक्रम के बारे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही CMHO व PMO को पहला टीका लगवाने पर बधाई दी। जिला अस्पताल में जो टीकाकरण का हमने कक्ष बनाया है उसका निरीक्षण करने के लिए भी आए हैं। अभी हम यहाँ पे जो वेटिंग रूम है उसमें खड़े हैं और आज जैसा कि आप देख रहे हैं 3 लोग यहाँ इंतजार में हैं। इसके अलावा अंदर की सारी व्यवस्थाएं देखी हैं और काफ़ी बढ़िया हैं और यहाँ पे करीब अभी 32-33 लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें CMHO साहब, PMO साहब और हमारे और भी वरिष्ठ डॉक्टर्स जो यहाँ पे हैं हनुमानगढ़ के, उन्होंने टीका लगवाया है और स्टाफ के लोगों ने भी लगाया है। जो लोग इंतजार में हैं वो यहाँ पे हैं और इसके अलावा जिन लोगों के टीका लग चुका है वो वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं दूसरे रूम में। उनसे सबसे मैंने बात की है, किसी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। अपने ज़िले में 5 केंद्रों पे टीकाकरण चल रहा है, जिसमें एक ये है और 4 अलग स्थानों पे हैं। तो सभी कार्रवाई यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। मैं इसके लिए CMHO साहब, PMO साहब और सारे हमारे मेडिकल के स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकार ने ये जो टीकाकरण शुरू किया है इससे आम जन के स्वास्थ्य में लाभ होगा और सुधार होगा। जिले में करीब 10 माह के अंतराल के बाद 18 जनवरी से स्कूल खुले जा रहे हैं। कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को पहले चरण में 18 जनवरी से स्कूल बुलाया जाएगा। इसको लेकर स्कूल संचालकों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्कूलों में गोले बनाने, सैनिटाइजेशन करने और साफ सफाई के साथ बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए बैठक व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। सरकार की जारी गाइडलाइन के मुताबिक फिलहाल स्कूलों में 50% बच्चों को ही बुलाया जाएगा। निजी संस्था संघ के जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि स्कूलों में सैनिटाइजेशन का काम एक बार पूरा कर लिया गया है। क्लासरूम सहित पूरे स्कूल प्रांगण की सफाई करवा दी गई है। क्लासरूम में बेंच इस तरीके से लगाई जा रही हैं कि एक स्टूडेंट की दूसरे से लगभग 6 फीट की दूरी बनी रहे। उन्होंने बताया कि लंबे समय बाद स्कूल खुल रहे हैं, ऐसे में स्कूल में रंग रोगन का काम भी करवाया गया है। स्कूल खुलने से पहले बच्चों के अभिभावकों को भी बुलाया जाएगा ताकि उनके साथ बैठक कर स्कूल खोले जाने पर चर्चा की जा सके। इस बैठक में विद्यार्थियों के परिजनों को स्कूल खोलने के संबंध में सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पूरी जानकारी दी जाएगी। जिलाध्यक्ष शर्मा ने बताया कि सभी स्टूडेंट्स और उनके परिजनों को स्कूल खुलने का मैसेज कर दिया गया है। परिवारों को भेजे गए मैसेज में स्पष्ट कहा गया है कि अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब हो तो उसे स्कूल न भेजें। साथ ही परिजनों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वह सादे कागज पर अपनी सहमति देकर भेजें कि हाँ, वह अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि स्कूलों में बच्चों के प्रवेश से पहले टेम्परेचर गन से तापमान मापा जाएगा और हाथ सैनिटाइज किया जाएगा।
18 तारीख से राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने की अनुमति प्रदान की है। उसी के दृष्टिगत अब स्कूलों में सफाई कार्य चल रहा है, क्योंकि 10 महीने के बाद स्कूल शुरू हो रहे हैं। सैनिटाइज़र की व्यवस्था सभी ने कर ली है। बाकी डेली क्लासों को सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद में एक सहमति पत्र है, पेरेंट्स की सहमति के आधार पर ही बच्चा वहाँ इस क्लास में आएगा। अगर पेरेंट्स सहमति नहीं देता है तो बच्चा नहीं आ सकता। राज्य सरकार ने छूट भी प्रदान कर रखी है कि किसी को आप ज़बरदस्ती विद्यालय में नहीं बुलाएं, उनकी अनुमति से विद्यालय में आए। तो जो भी निजी संस्थाएं सब सुचारू रूप से अपने संचालन के लिए उन्होंने समस्त तैयारी कर ली हैं और की जा रही है। राज्य सरकार ने केवल 9वीं से 12वीं क्लास की परमिशन दी है, वही क्लासें लगेंगी। बाकी निजी शिक्षण संस्थाएं चाहती हैं कि क्लास जो है 6ठी से लेकर के 12वीं तक संचालन किया जाए, उसके लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। गौरतलब रहे कि कोरोना संक्रमण के फैलने की स्थिति को देखते हुए सरकार ने पिछले साल 15 मार्च से सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए थे। इसके बाद से लेकर अब तक स्कूल बंद हैं। लेकिन अब कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत कम आ रही है और धीरे धीरे इस संक्रमण पर कंट्रोल पाया जा रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने 18 जनवरी से स्कूल खोलने का निर्णय किया था। निजी शिक्षण संस्थाओं के संगठनों के पदाधिकारियों ने 18 जनवरी से स्कूलों में कक्षाएं संचालित करने के गृह मंत्रालय के आदेशों के तहत विद्यार्थियों में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर विद्यालय प्रबंधन को खर्चा वहन करने के नियम का विरोध किया है। इस मामले को लेकर पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। संचालकों का कहना था कि कोरोना काल में बालकों को ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की गई है। कोरोना के कारण अधिकांश विद्यार्थियों से फीस भी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में स्कूलों का संचालन बहुत मुश्किल हो गया है। अब 18 जनवरी से 9वीं से लेकर 12वीं तक शिक्षण व्यवस्था के आदेश हुए हैं, लेकिन इसमें किसी विद्यार्थी में कोरोना के लक्षण मिलने पर शिक्षण संस्थान द्वारा खर्चा वहन करने के बिंदु से निजी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था जारी रखने में असुरक्षा तथा भय का माहौल है, जबकि बालकों में किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए शिक्षण संस्थान दोषी नहीं है। किया था कि पहले जो गाइडलाइन थी कि अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई कोविड-19 से प्रभावित होता है तो उसकी समझ जिम्मेवारी निजी विद्यालय की होगी। सभी शिक्षण संस्थाएं इस नियम का विरोध करती हैं, क्योंकि बच्चा होता है, चाहे वो सरकारी स्कूल का हो या वो निजी विद्यालय का हो, और सबके लिए नियम बराबर हैं। और अगर हमने इसके लिए कलेक्टर साहब को विरोध दर्शा दिया है, अगर इसकी हमें परमिशन नहीं मिलती, हम इसके लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। मकर संक्रांति के अवसर पर अपना घर वृद्धाश्रम में का जीर्णोद्धार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कड़ी में सभी कमरों में अलमारी लगाई गई। वृद्धाश्रम के सभी कमरों में 5 फीट ऊंचाई पर 12 बाई 24 इंच की टाइल लगाई जानी है। पूरे वृद्धाश्रम के ऊपर नीचे की सारी बिल्डिंग में पुट्टी और रंग रोगन का काम भी किया जाएगा। सभी गेट रोशनदान की मरम्मत कर उन पर भी रंग रोगन करवाया जाना है। साथ ही वृद्धाश्रम में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने भी प्रस्तावित है। अपना घर वृद्धाश्रम हनुमानगढ़ टाउन में पूरी बिल्डिंग का रेनोवेशन का काम शुरू किया गया है। इस कड़ी में सभी कमरों में अभी सीलन की समस्या है, उसके लिए हम लोग उनका सीमेंट निकाल के और 5 से 6 फीट की हाइट तक उसमें टाइलें लगाई जाएंगी और बाकी ऊपर उसके ऊपर हम लोग पेंट किया जाएगा। फर्श की रगड़ाई की जाएगी, बिजली वगैरह पानी की जो थोड़ी छोटी समस्या हैं उन सबको दूर किया जाएगा। अभी हमारे पास ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहने की प्रॉपर व्यवस्था थी, फर्स्ट फ्लोर पे प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी अभी, तो उसके अंदर भी हम लोग उसके अंदर पूरा सुधार करके सभी अलमारियाँ वगैरह तैयार करके उसके अंदर लगाई जा रही हैं। पेंट वगैरह करके बेड लगा के उनको भी रहने लायक पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा। इससे हमारे वृद्धाश्रम में रहने की जो क्षमता है हाल फिलहाल दुगनी हो जाएगी। इस कड़ी में अभी सभी कमरों के अंदर हम लोगों ने अलमारियाँ लगाई हैं। पहले सीधी अलमारी थी, उसके ऊपर ढक्कन नहीं थे, तो उन सब के ऊपर ढक्कन लगा के सबको एक एक अलमारी दे दी गई है। उनकी चाबी उसकी वृद्ध को दे दी जाएगी ताकि वो अपना सामान उसके अंदर अच्छे से रख सके। इसके साथ हम लोग पूरे कैंपस के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रहे हैं, जो हम आम शहर के लिए उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेचर, व्हील चेयर, हॉस्पिटल बेड, वाटर बेड, एयर बेड, ये सारी सुविधाएं हमारे पास, सामान हमारे पास पड़ा है। शहर के किसी भी जन को
अगर इसकी आवश्यकता पड़ती है तो निसंकोच यहाँ से लेके जा सकता है, अपने इस्तेमाल के बाद उसे वापस ले जाए। अभी यहाँ पर कुल 17 वृद्धजन रह रहे हैं। 2005 से संस्था चल रही है, आमजन के सहयोग से चल रही है। शहर का बहुत सहयोग रहता है इसके अंदर। श्री रमन सभा हनुमानगढ़ टाउन द्वारा संचालित अपना घर वृद्धाश्रम के अंदर आज अब इस टाइम पूरा कार्य जीर्णोद्धारण कार्य चल रहा है। ये कार्य सारा हनुमानगढ़ शहर से जन सहयोग से सारा चल रहा है। धीरे धीरे सभी शहरवासियों से अपील है कि ये सारे जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो भी कार्य हैं, जो पेंडिंग कार्य रह रहे हैं वो पूरा हो सके, इससे बुज़ुर्गों को पूरी राहत मिल सके हर कार्यों में। जैसे गर्मियों में कूलर, पंखे और कई संस्थाओं द्वारा या कई व्यक्तियों के सहयोग द्वारा अलमारियां लगवाई गई है, सीलिंग का कार्य करवाया गया है और टाइलें लगवाई गई है। इसी तरह हम शहरवासियों से अपील करते हैं कि जो काम अभी पेंडिंग पड़े हैं वो भी पूर्ण रूप से जन सहयोग से पूरा हो सके। कृषि अध्यादेशों को लेकर देश में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में कोहला टोल नाके पर भी किसानों का धरना शनिवार को 26वें दिन जारी रहा। धरने पर बैठे किसानों ने केंद्र सरकार से 3 कानूनों को वापस लेने की मांग की। कोरोना का 26वां दिन है हमारा। किसान भाइयों को यहाँ पे बहुत दिक्कतें, ठंड बढ़ रही हैं और किसानों को यहाँ रहना भी मुश्किल है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि वो 3 काले कानून जल्दी से जल्दी वापस ले और किसान अपने घर पे लौटें। सूरतगढ़ रोड से टोल नाका से किसानों का जत्था आज तिरंगा लेकर रवाना हुआ। किसानों का कहना है कि वे तब तक डटे रहेंगे जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती। देखिए किसानों के साथ सीधी बात। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये तिरंगा झंडा लेके यहाँ टोल नाके से काफ़ी संख्या के अंदर किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ किसान हैं। आप बताएं कि किस तरह की तैयारी करके आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं जी किसान। तैयारी यही है, ये 3 काले कानून सरकार वापस ले और हम आस करते हैं कि सरकार किसानों की ओर देखेगी, झूठ बोलना ये बंद करे किसान और किसान के हित की बात करे। दिल्ली जा रहे हैं साहब, बड़े प्रेम से जा रहे हैं, प्यार से जा रहे हैं। ये देश हमारा है, ये सड़कें हमारी हैं, ये खेत हमारा है, ये नहरें हमारी हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ कहना ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਐਮਸੀ ਜਾਮਾ ਬਣਾਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਮਸੀ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। मोर्चा फतेह करके उदो ही आवांगे जो साढ़े कानून पुठे ले लो। चुनाव होते ही हमारे ट्रैक्टर और 5-7 ट्रैक्टर और ट्रालियां हमारी दारूहेड़ा बॉर्डर पे हैं फतेहगढ़ की, और वहाँ जो शाहजहाँ बॉर्डर तोड़ के आगे निकले थे वो हमारे ही बच्चे हैं। वो दारूहेड़ा बॉर्डर पे आज सरकार से ये धरने पे बैठे हैं। मैं कुछ और किसानों से बात कर लेते हैं। ये जानी जी हैं और ये पहले दिन से ही यहाँ धरने पे, इस टोल नाके पे धरने पे बैठे हैं। ये बहुत काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। आप ये बताएं जानी जी, आप भी जा रहे हैं दिल्ली? हाँ जी, हम सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे कुछ लोग बैठे हैं जो इस धरने को यहाँ पे सुचारू करेंगे, और मैं आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी हमारे में से एक सदस्य वापस रहेगा। चाहे जहाँ भी को आना वहाँ को आलो, हम 26 जनवरी को दिल्ली में पहुँचेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो दिल्ली जाने के लिए तिलक किया जा रहा है, तिरंगा लेके जा रहे हैं। और अमित गुदारा जो भामाशाह है, पहले दिन से ही ये यहाँ पे डबली टोल नाके पे डटे हुए हैं और इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ से किसानों का जो जत्था है रवाना हो रहा है। और आपको बता देंगे जो आप अमित गुदारा जी, आप ये जो झंडा लेके जा रहे हैं, अमित जी। हाँ जी, आप ये झंडा लेके जा रहे हैं, तिरंगा लेके जा रहे हैं जी। जी,
और कब लौटेंगे आप? भाई 26 से पहले तो नहीं आएंगे, उसके बाद सरकारों पे है। अगर सरकारों का रवैया यही रहा तो हम आते रहेंगे और साथियों को लेके जाते रहेंगे। हमारे जितने भी साथी है वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा करके लेके जाएंगे। एक मिनट यार, नहीं कन्नूर वापस करके आएंगे, नहीं तिरंगे में लिपट। बिल्कुल बिल्कुल, आपका गुस्सा जायज़ है। किसानों, क्योंकि धरती पुत्र है, किसानों पे रात गुजार रहा है और इस भयंकर सर्दी के अंदर हनुमानगढ़ से भी एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। अमित गोदारा और इनके साथ बाकी किसान साथी हैं और मनप्रीत हैं, ये भी पहले दिन से ही किसानों के साथ में डटे हुए तिरंगा लेके जा रहे हैं। मनप्रीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आज हम डबली टूल टैक्स से ये हमारा जो मान सम्मान तिरंगा लेकर आज हम जा रहे हैं। जो 26 तारीख की हमारी जथेबंदियों की कॉल है कि हम परेड करेंगे, हम ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में हमारा तिरंगा लेके हम परेड करेंगे। डबली से हम किसान भाई जो 20 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं, वो किसान भाई सभी हम साथ जा रहे हैं। और जो हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी है, यहाँ पे हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। पहले भी हमने 14 तारीख को कई ट्रालियाँ भेजी है और फिर हमारे सरपंच साहब है 2 दिन बाद ये भी हमारे पास वहाँ आ रहे हैं। नहीं, मनप्रीत जी, आप दिल्ली जा रहे हैं, यदि वहाँ पे प्रशासन से या वहाँ से पुलिस रोकना चाहेगी, टकराव होगा, तो कैसे सामना करेंगे आप? हमारे पास जी सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास हमारा तिरंगा है और एक हम किसान हैं। हम उनका सामना नहीं करेंगे। हम उनसे अपील करते हैं कि आप हमें दिल्ली जाने दीजिए, हमारा हक है वहाँ जाने का। हम अपना हक मांगने के लिए जा रहे हैं, हम लड़ने के लिए नहीं जा रहे। हम किसी को मानहानि के करने नहीं जा रहे। हम हमारे हक के लिए लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसके लिए हमें जा रहे हैं। हमारा अधिकार है, हमें वो नहीं रोक सकते। बिल्कुल बिल्कुल, सभी किसान हैं जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे साथ सरपंच हैं मक्का सर के, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, लगातार ये सरकार का विरोध हो रहा है और जो सरकार ने 3 काले कानून और चौथा जो बिजली का 4 कानून है पास किए हैं, ये अंग्रेजों के समय में 1907 1906 में कानून ऐसे लागू किए थे। उस समय भी करतार सिंह सराभा 1915 में और बाबा सोहन सिंह बकना और दूसरे साथी अजीत सिंह शहीद आजम भगत सिंह के चाचा श्री ने उस समय काले पानी की सजा हुई और सरकार को, अंग्रेज सरकार को झुकाया और वो काले कानून वापस हुए। हमारे मक्का सर से पहले भी जथा 14 तारीख को रवाना हुआ है। आज हमारी 5-6 ट्रालियाँ और दूसरी पर्सनल गाड़ियों पे साथी जा रहे हैं। हम भी 2 दिन के बाद यहाँ से और साथियों को लेके 26 तारीख के गणतंत्र दिवस पर जो ट्रैक्टर मार्च आज़ादी के गणतंत्र दिवस के लागू होने के 1950 में जो उस समय ट्रैक्टरों की परेड थी, आज वही परेड द्वारा होगी और देश को सद्बुद्धि देश के सरकार को आए, कानून वापस ले। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैक्टर रैली के रूप में जा रहे हैं और 26 जनवरी की परेड में, वहाँ पे जो ट्रैक्टर रैली की परेड में शामिल होंगे। अमित गुदारा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी ये लड़ाई जो है ये व्यवस्था परिवर्तन की है और हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही दिल्ली में बैठ के हमारे जो किसान मजदूर साथी है वो लड़ रहे हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, ये जो काफ़ी लोग बोल रहे हैं भी ये एक किसानों का आंदोलन है, तो मैं बताना चाहता हूँ ये किसानों का आंदोलन नहीं है। किसानों ने इस आंदोलन की शुरुआत की है, ये आम आदमी का आंदोलन है और हम दिल्ली जाकर व्यवस्था परिवर्तन करके ही वापस आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं इनके अंदर जो रोष है तीनों काले कानून को लेकर। और अभी यहाँ हनुमानगढ़ डबली रठान टोल नाके से को मान सकते हैं कि 26 जनवरी की तैयारी को लेके ये यहाँ से निकल रहे हैं और 26 जनवरी को जो दिल्ली के अंदर जो ट्रैक्टर रैली निकलनी है, तो उसमें हनुमानगढ़ का नेतृत्व करने के लिए भामाशाह अमित गुदारा के साथ ये लोग जा रहे हैं। समाज सेवी संस्था इनरव्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट की चेयरमैन सुषमा ग्रोवर का शनिवार को क्लब सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। क्लब की अध्यक्ष आशा गोयल ने क्लब द्वारा किए जा रहे पौधरोपण, मदर केयर, जननी सुरक्षा, अनाथ बच्चों व वृद्धाश्रम में सहयोग जैसी सामाजिक सेवा कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। स्वागत कार्यक्रम के पश्चात क्लब सदस्यों द्वारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सुषमा ग्रोवर को टाउन स्थित वृद्धाश्रम का दौरा करवाया गया। इस दौरान सदस्यों ने वृद्धाश्रम के रंग रोगन के लिए आर्थिक सहयोग व वृद्धजनों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान की। क्लब अध्यक्ष सुषमा ग्रोवर ने बताया कि इनरव्हील क्लब, जो कि महिलाओं की एक संस्था है, जरूरतमंद लोगों के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उन्होंने बताया कि क्लब द्वारा बुजुर्गों की देखभाल करते हुए उनकी जरूरतों का ध्यान रखने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें हनुमानगढ़ क्लब खरा उतरा है। क्लब की पूर्व अध्यक्ष सुमन चावला व मंजुला गर्ग ने बताया कि हमने समय समय पर वृद्धाश्रम का दौरा कर जरूरत के अनुसार सहयोग किया है।
आज वृद्धाश्रम को रंग रोगन की जरूरत थी, जिसे देखते हुए रंग रोगन का सामान व आर्थिक सहयोग दिया गया। इस दौरान क्लब कोषाध्यक्ष डेजी, उषा बंसल, एडिटर सुमन चावला, चंदन ज्योति, सचिव नीतू सिंगला, गरिमा गुप्ता आदि क्लब सदस्य मौजूद थे। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इनरविल की यहाँ पधारी है गुनियाना मंडी से, और इन्होंने अभी मदर केयर के लिए भी वहाँ से कपड़े भेजे थे, और जो हमने अभी थोड़े दिन पहले भी दिए हैं, और आगे भी कहा गया कि बस्तियों में जो सच में गरीब है तो उनको दिए जाए। और आज हम इसी के तहत यहाँ पर ओल्ड पीपल होम में आए हैं, और उनको क्योंकि यहाँ पर रंग चल रहा था तो उसी के लिए हमने कुछ पेमेंट इनको दिया है, एक सहयोग दिया है। तो आगे भी हम हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे, बुजुर्गों के साथ। और हम यही संदेश भी देना चाहते हैं इस समाज सेवी संस्था के द्वारा कि बुजुर्गों को वृद्धाश्रम की जरूरत ना पड़े, और बच्चे जो हैं एक इतने संस्कारित पैदा हों कि अपने माँ बाप की सेवा करें। लेकिन यदि कोई छोड़ देता है तो हमारा पूरा समाज उनके साथ खड़ा है, वो अकेले नहीं है। समाज सेवी संस्था जो कि महिलाओं की है, हमेशा समाज के ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए तैयार रहती है। ये 1924 में इसकी स्थापना हुई और हनुमानगढ़ में 1998 में हुई। ऑलमोस्ट 23 इयर्स हो गए, और ये हनुमानगढ़ की लेडीज़ इतना आगे बढ़ चढ़कर समाज सेवा के कामों में हिस्सा ले रहे हैं। इस साल हमारे जो गोल्स आए थे HOPE होप, इसमें H होता है हेल्थ एंड हाइजीन, O होता है ऑर्फनेज एंड केयर फॉर ओल्ड पीपल, P पैट्रियोटिज्म, I एम अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन, एंड E एनवायरनमेंट। जो ऑर्फनेज एंड केयर फॉर ओल्ड पीपल, वो आज हम उस गोल को पूरा करने आए हैं। हनुमानगढ़ की लेडीज़, हमारे जो पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मंजुला जी हैं, उनकी गाइडेंस के साथ साथ सुमन जी हमारे और भी पास्ट प्रेसिडेंट हैं, वो इस वृद्ध आश्रम में आते रहते हैं और इनकी जैसे जैसे ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करते हैं। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का कहर जारी है, जिससे हनुमानगढ़ में लगातार शीतलहर पड़ रही है। ऐसे में किन्नर समाज की ओर से पहल करते हुए 201 शॉल व जुराबों को जरूरतमंदों में भेंट किया गया। समाज की ओर से जंक्शन, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि जगहों पर शॉल व जुराबों का वितरण किया गया। यह वितरण चन्नोमाई में उनकी चेला मैनाबाई द्वारा किया जा रहा है। हमारी इच्छा है जी भी गर्मी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, भी कारण हमारे दिल में विचार आयो जो बहन भाई है बन ज़रूरतमंद चीज़ देने को विचार आया, जैसे कम्बल हो गया, शॉल हो गया, से विचार आया जी। आगे भी ये चलता रहेगा। हर साल मेरे गुरु करती थी, मेरे भी दिल में ये विचार आया भी मैं मेरे गुरु के जैसे करूँ काम। आज कितने परिवारों को शॉल और क्या क्या चीज़ दी है? हाँ, शॉल और जराबें करीब 200 इंसानों को शॉल और जराब दी थी, और पहले भी कम्बल दिए थे, 101 कम्बल दिए। आगे भी इच्छा है भी आगे कोई जो बहन भाई रह गया उनको भी देने की। जो नगर वासियों के लिए मैं जो इच्छा मेरे दिल में थी, ख्वाहिश थी, भाई ये काम करना मैं ये मैं कर दिया। और जीऊँगी तो ज़िंदगी के अंदर ये ख्वाहिश फिर भी करती रहूँगी। ये मेरे चेला, मैं मर जाऊँ तो कल को मेरे चेले करेंगे पीछे से। मेरे शहर वासियों से बहुत प्रेम है और शहरवासी इनको भी बहुत योगदान देते हैं। तो मैं मेरे पूरे शहर वासियों की तरफ से मेरे किन्नर समाज को, मेरी माता सन्नोबाई और हमारे अति रिस्पेक्टेड मैनाबाई जो इस पूरे कार्य को देख रेख करके आगे संचालन कर रही है और करती रहेगी, शहरवासी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जहाँ एक तरफ चन्नोमाई ने गर्म वस्त्रों का वितरण किया, वहीं उनकी शिष्या व पार्षद नगीनाबाई द्वारा भी भट्टा कॉलोनी में जरूरतमंदों में गर्म कंबल और शॉल भेंट किए गए।
यहाँ ज़रूरतमंदों को 1 से 1 कंबल बांटे हैं, जो कि सभी मेरे साथ मोहल्लेवासी मिल करके जैसे कोई गरीबों को दिए हैं। और इसी तरह दान करना चाहिए, जिनको ज़रूरत है उनका देना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हम हर एक को सुख शांति रखे। कंपनी फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में आई फाइनेंस कंपनी की ओर से कोरोना काल में बेहतरीन कार्य करने पर जंक्शन पुलिस थाना स्टाफ का सम्मान किया। आई फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर विजय सिंह ने बताया कि इसी कड़ी में हनुमानगढ़ ब्रांच की ओर से जंक्शन पुलिस थाना स्टाफ का माला पहनाकर तथा ब्रेकफास्ट करवाकर सम्मान किया गया। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन ने कोरोना काल में आमजन की बेहतरीन सेवाएं की थी। हमारा कंपनी का फाउंडेशन डे था, आज 7th फाउंडेशन डे था। इस कारण हमारी कंपनी के सभी ब्रांचेज में कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने कि कोरोना काल में पुलिस कर्मी हो गए, अपने स्वास्थ्य कर्मी हो गए, बेहतरीन सेवाएं दी थी। आमजन की सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। उसी कड़ी में हमारी हनुमानगढ़ ब्रांच ने डिसाइड किया कि हम जंक्शन थाना पुलिस में जो कि स्टाफ कर्मचारियों ने काफ़ी मदद की, लोगों की समय पर उन्होंने घर पहुँचाने में मदद की, उनकी कोई मेडिसिन वगैरह थी, तो उन्हीं के लिए हमें सम्मान का बोला गया था। उसी के तहत हमने यहाँ पर आज जंक्शन थाना में कोरोना वॉरियर्स के रूप में सीआई स्टाफ के जो भी बंदे थे, पुलिसकर्मी, एसआई साहब, मैम जो भी थे, उनको माला पहनाकर उनका ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम किया गया और उनको सम्मानित किया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।